Hello kids, welcome back to Science at Click. We are discussing the lesson acids, bases and salt, and in that lesson we have already covered what are acids and what are different uses of acids. Today we are going to talk about our bases. Now before we start with bases, let's discuss about what we have already discussed about acids. So about acids we have discussed that it is sour in taste. Okay, acids are sour in taste, then they are corrosive in nature. Okay, and also important property, they turn blue litmus paper red. Red. Okay, so they are basically sour in taste, then they are corrosive in nature, highly corrosive, highly reactive substances, and then they turn blue litmus paper red. Okay, अभी litmus paper क्या है? तो litmus paper is your indicator which changes color. Indicators are basically chemical substances which change color in different mediums. Mediums means कि acidic medium है, basic medium है या फिर neutral है. Neutral medium मतलब जो medium आपकी it is neither acidic nor basic. Are you getting it? So that medium is neutral. तो हमको देख के कैसे पता चलेगा? We cannot identify just by looking at the solution because most of the time they are colorless solutions. Okay, and that is even not scientific. You must have certain proof to state whether your solution is acidic, basic or neutral, and hence we use certain chemical substances. When we add them in your solution, they change color, and according to that color we say that whether the solution is acidic, basic or neutral. So about these indicators we'll separately study in a different video. Let's now focus on bases. So your bases are bitter in taste. ओके, दे आर सोपी टू टच. डिटर्जेंट को जैसे हम लोग टच करते हैं तो सोपी जो फीलिंग आता है वो सभी बेसिस को होता है, नॉट ओनली टू डिटर्जेंट. डिटर्जेंट्स आर ऑल्सो योर बेसिक सब्सटेंसेस. ओके, सो डिटर्जेंट, सोप, ओके, फिर ये डोमेक्स, ड्रेनिल, आपका फ्लोर क्लीनिंग एजेंट्स, ये सारे आपके क्या होते हैं? दीज आर ऑल योर bases. So they are bitter in taste. Your baking soda, washing soda मतलब ही आपका सोप, जो जिससे सोप बनता है, that is your washing soda. Baking soda जो that we use in cooking पकोड़ाज में डालते हैं या फिर आपके केक में डालते हैं. So that baking soda is also a type of base, means it is a basic substance. So it is बीटर एंड सोपी टू टच. हम लोगों ने एसिड्स में देखा था कि दे आर आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन. मतलब कोई भी आपका एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये जो सारे आपके एसिड्स है, दीज एसिड्स व्हेन दे आर एडेड टू वाटर, what they form, they give out H+ ion. Okay, this is a very important property because यही H+ ions है जो indicators को अपना कलर चेंज करने के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? They change the color of indicator. Presence of these ions are very important. Presence of these ions is very much responsible for all the chemical properties that are shown by acids. Okay, and bases have your OH- ion. What is it? OH-. This is also known as hydroxyl ion. This is hydrogen ion, this is hydroxyl ion. Okay, this is positive in nature, this is negative in nature. Okay, और ये जो आपके bases है, they turn red litmus blue. आ रही है बात समझ में? अभी देखो, ध्यान से देखो. ओके, कि यहाँ पे आपका ब्लू लिटमस रेड हो रहा था, यहाँ पे रेड लिटमस ब्लू हो रहा है. ओके, तो आप बोलोगे मैम ठीक है, हम लोग पेपर ही अलग डाल रहे हैं ना, इंडिकेटर ही अलग डाल रहे हैं, यहाँ पे ब्लू डाल रहे हैं इसलिए रेड हो रहा है, यहाँ पे रेड डाल रहे हैं तो ब्लू हो रहा है. ऐसा नहीं है. इफ़ यू पुट रेड इंडिकेटर इन एसिड इट विल रिमेन रेड. आर यू गेटिंग इट? If you want to check whether your given solution, if you have a solution in your test tube and you want to check whether your solution is acidic, basic or neutral,
what you will do, you will put both, let's put both the litmus paper. ओके तो आपका सोल्यूशन में आपने रेड भी डाला, ब्लू भी डाला, तो रेड का रेड ही रहता है और ब्लू का अगर रेड हो रहा है, मतलब एट द एंड ऑफ द प्रोसेस both the papers you have added one blue and one red, but at the end both the papers that you, if you observe them, they are red in color, and then that time you can say that yes, my solution is acidic in nature. acid नहीं बोलना है, एसिडिक इन नेचर बोलना है, क्योंकि हमको नहीं पता कि वो डेफिनेटली एसिड है, सिर्फ इंडिकेटर के टेस्ट से नहीं पता चलता. क्यों नहीं पता चलता मैडम? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड एसिडिक? बताती हूँ. एसिड्स आर योर दो सब्सटेंसेस विच आर लाइक नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे एसिड है. लेकिन कुछ कुछ आपके सॉल्ट्स भी ऐसे होते हैं, दे शो एसिडिक प्रॉपर्टीज. व्हाई दे शो एसिडिक प्रॉपर्टीज, दैट आई विल टेल यू इन द वीडियो ऑफ सॉल्ट्स. Okay, that we'll discuss in detail, but for time being remember that whenever you write in your observation table or in your inference, in observation you will write whether blue is turning to red or red is turning to blue, that will be your observation. In your inference table, when you write down your inference, you will never ever write that the given solution is acid. Only indicators cannot tell whether it is acid, base or salt. It is we will say that your solution is acidic in nature, because when it is turning, your solution is turning blue litmus paper red, it can be acid, it can be your acidic salt also. Okay, so that's why we don't know whether it's acid or acidic salt, but since it is showing blue to red, it is acidic in nature. It may be acid or it may be acidic salt. ये हमेशा ध्यान में रखना है क्योंकि इस पे मार्क्स जाते हैं. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन रेड टू ब्लू कब होगा? आपका बेस में होगा. तो आप क्या लिखोगे टेस्ट में कि दैट यू आर एडिंग लिटमस पेपर, फिर ऑब्जर्वेशन में आएगा. अभी आप भी यहाँ पे भी ब्लू लिटमस पेपर डाल सकते हो, दोनों डालो, ब्लू भी डालो, रेड भी डालो. लिटमस पेपर ओनली दे आर ऑफ टू टाइप्स, रेड एंड ब्लू. ओके, सो दोनों पेपर के पीसेस आप डालो आपके सोल्यूशन में, या फिर फोरसेप से होल्ड करके जस्ट डिप इट in your solution. Okay, and check out. So your blue will remain as it is, blue, but your red will turn blue. अभी जब आपका न्यूट्रल सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन है, या फिर प्लेन वाटर है, ये सोल्यूशन न्यूट्रल सोल्यूशन होते हैं. व्हेन यू पुट बोथ दीज लिटमस पेपर इन योर न्यूट्रल सोल्यूशन, बोथ ऑफ देम विल नॉट शो एनी कलर चेंज. ओके, तो याद रखो 3 सोल्यूशन है. I'll draw it somewhere here. आपके पास 3 सोल्यूशन है, A, B, C, राइट. तीनों में आपने एक ब्लू लिटमस, एक रेड लिटमस, एक ब्लू लिटमस, एक रेड लिटमस ऐसे डाला तीनों सोल्यूशन में. ओके, आपके पहले सोल्यूशन में दोनों लिटमस ब्लू टर्न हुए, आपके दूसरे सोल्यूशन में आपको कोई चेंज नहीं दिखा. मतलब दो जो यहाँ पे पीसेस है आपके लिटमस पेपर पे के दोनों रेड दिख रहे, यहाँ पे एक रेड दिख रहा है, एक ब्लू दिख रहा है, और यहाँ पे दोनों रेड दिख रहे हैं, यहाँ पे दोनों रेड दिख रहे हैं. तो आपका ये क्या है? बेस है. हमेशा याद रखो, B फॉर बेस, B फॉर ब्लू. ब्लू कलर दिख रहा है एट द एंड ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, दैट मीन्स इट इज बेस, ब्लू बेस. ओके, और अगर रेड दिख रहा है तो एसिड्स आर डेंजरस, एंड रेड कलर signifies danger, hence we will say that this is acid. और कोई भी कलर चेंज नहीं है, no change at all. रेड का रेड ही रह गया, ब्लू का ब्लू. मतलब at the end of your process both the colors are visible inside your solution, that means it is a neutral solution. ऐसा कभी नहीं होगा कि एक सोल्यूशन में आपने डाले आपके लिटमस पेपर और रेड का ब्लू हो गया, ब्लू का रेड हो गया. एट ए टाइम दोनों चेंजेस नहीं होंगे. आइदर इट विल बी रेड टू ब्लू और इट विल बी ब्लू टू रेड, और देर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ चेंज. दिस इज क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी सर्टेन एग्जाम्पल्स. ये तो डेली लाइफ chalk. Now listen, your chalk is calcium carbonate. As I told you that
Calcium carbonate is basically a salt. It is not a pure base. It is a salt, but it shows basic properties. Yes, why it does so, that we'll discuss, but it shows basic characteristic, and hence it comes under base also. मतलब ये क्या करेगा, अगर आपने चौक का पाउडर पानी में डाला और उसमें आपने लिटमस पेपर डाले, तो दैट दिस सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर विल टर्न योर रेड लिटमस ब्लू. आ रही है बात समझ में? देन दिस इज योर प्योर बेस. योर प्योर बेस इज NaOH. ओके, आ रही बात समझ में? OH ग्रुप दिख रहा है, OH माइनस आयंस फॉर्म करेगा. ओके, सो बेसिक इन नेचर. ओके, फिर आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. बेसिक सॉल्यूशन है. ओके, बेकिंग सोडा इज योर NaHCO3. देखो OH ग्रुप नहीं दिख रहा है. ओके, तो ये इसी के समान क्या है, एक सॉल्ट है, लेकिन क्या है, बेसिक सॉल्ट है. मतलब क्या, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा सॉल्ट होने के बावजूद. Remember, your salts are not always neutral. Some of them are neutral, some of them are acidic, and some of them show basic characteristic. Okay, that we'll discuss in detail in your next video. Okay, तो ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गए बेसिस के. दे आर बिटर इन टेस्ट, दे आर सोपी टू टच, bitter in test, soapy to touch, and formation of OH minus ions and turn red litmus blue, red to blue. ओके, तो जो कोई भी क्लीनिंग आपके क्लीनिंग के, इवन टूथपेस्ट, जो कोई भी आपके क्लीनिंग के एजेंट्स है, वो काफ़ी सारे क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर. ओके, वाई? बिकॉज बैक्टीरिया ग्रो or germs grow very well in acidic condition. So to kill them, to nullify that acidic medium, we use bases. Okay, yes. Now let's talk about certain bases, common bases, their formulas and their uses. Okay, the common is your sodium hydroxide. Sodium hydroxide is a very common base, also known as caustic soda. Okay, and the formula is NaOH. Sodium is Na, and hydroxyl group, when attached to any metal, we form. We have already seen that your oxides, metal, when react with oxygen, they form metal oxides, and when these metal oxides come in contact with water, what they will form? Metal hydroxides, and metal hydroxides are nothing but your bases. है ना? We have already discussed in our first video. So NaOH. So OH जब कभी भी कोई भी metal को attached है, okay, so that is what your base. KOH, potassium hydroxide. CaOH, Ca is what? Calcium. So this becomes calcium hydroxide. Mg is magnesium, magnesium hydroxide. Ammonia, NH4 is ammonium, NH3 is ammonia. Okay, now when this NH3 reacts with water, okay, what it will form? Water, I can write it as HOH. Am I right? H2O, I can write it as HOH. So H3 and H react to form H4. Okay, और यहाँ पे OH group attached हो जाएगा इसको. So that becomes your ammonium hydroxide. ओके मैडम, अभी इसमें मेटल तो नहीं है. यस, इसमें मेटल नहीं है, लेकिन अमोनिया गैस जो होता है, दैट ऑल्सो, this is the hydride of non-metal, that also when it comes in contact with water forms a base, but it is very weak base as compared to these metal hydroxides. Okay, metal hydroxides are very strong bases. Ammonium hydroxide is a weak base. Okay, क्योंकि इसमें metal नहीं है. ठीक है, अभी कॉमन नेम के बारे में, ये तो इनके केमिकल नेम हो गया. सोडियम मेटल है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम मेटल है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड.
कैल्शियम है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनिया है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अभी कॉमन नेम देखते हैं। दिस कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉस्टिक सोडा. ओके, सोडा मीन्स सोडियम रिलेटेड, सो कॉस्टिक सोडा. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आइदर यू कॉल इट पोटैश, पोटेशियम है ना, पोटैश, या फिर कॉस्टिक पोटैश, बोथ द नेम आर सेम. ओके, caustic soda, caustic potash और simply potash. then lime water. ओके, अभी लाइम वाटर लैब में जब मैं देती हूँ बच्चों को तो व्हाट दे फील दैट इट इज़ लेमन वाटर. नो. और एनी सिट्रस फ्रूट वाटर. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. लाइम वाटर इज द वाटर व्हेन यू ऐड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, जो चूना होता है. ओके, तो वो दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन यू पुट इट इन वाटर, वाइट वॉश के लिए पहले जब पेंट्स नहीं थे ना, फैंसी वाले पेंट्स, तो घर में वाइट वॉश के लिए या फिर पेंटिंग के लिए यही यूज़ होता था. तो व्हाट दे डू, दे टेक कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ दैट चूना, वी गेट रॉक्स ऑफ देम. Okay, when you put it in water, it will form your calcium hydroxide, that is lime water. ठीक है. वाइट वॉशिंग देखो यूज़. ओके, यही यूज़ होता था पहले इंस्टेड ऑफ पेंट्स. ठीक है. NaOH इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ वॉशिंग सोप. डिटर्जेंट्स या सोप के मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपाउंड यूज़ होता है वो है आपका कॉस्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड. सेम विथ KOH. ओके, आपके लिपिड्स या फिर फैटी एसिड्स के साथ, ऑयल के साथ रिएक्शन करते किसी में से एक की, व्हाट यू गेट सोप और शैम्पू और डिटर्जेंट. ओके, दिस इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ वेरी यूजफुल सब्सटेंस. इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड, जो है आपका डाइजीन, जेल्यूसिल. ओके, जो मेडिसिन है जो एंटासिड करके एक्ट होते हैं, एंटासिड अगेंस्ट द एसिड, अगेंस्ट द एसिडिटी काम करते हैं. बॉडी के अंदर की जो एसिडिटी है उसके अगेंस्ट एक्ट करते हैं. तो दैट इज अ बेस. एंटासिड इज बेस्ड अपोजिट ऑफ एसिड. ओके, तो ये बेस यूज होता है एसिडिटी रेजिस्टेंट मेडिसिन में. ओके, देन NH4OH फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र, क्योंकि फर्टिलाइज़र में आपको चाहिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम. NPK इन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं आपके प्लांट्स के लिए. ओके, तो वो प्रोवाइड करने का काम कौन करेंगे? ये आपका नाइट्रोजन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, आ गई बात समझ में? इसका कोई कॉमन नेम नहीं है. हाँ, इसको लिक्विड अमोनिया भी बोलते हैं. यस, अनदर नेम ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज लिक्विड अमोनिया. लेबोरेटरी में जो बॉटल्स होते हैं ना जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसके ऊपर काफ़ी बार लिक्विड अमोनिया लिखा होता है. मतलब अमोनिया गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर विल गिव यू NH4OH. ओके, सो देखो फिर से एक बार ये टेबल रिवाइज करेंगे. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज योर कॉस्टिक सोडा. सोडियम है तो सोडा लिखना है, पोटेशियम है तो पोटैश लिखना है. ओके, NaOH, KOH. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसी का नाम क्या है? लाइम वाटर. सब ने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा. इफ़ यू टेक लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड स्ट्रॉ से इफ़ यू बबल एयर थ्रू इट, दैट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन होता है आपका COOH/2. और आप जब बबल आउट कर रहे हैं, एयर बबल आउट कर रहे हैं, तो आप क्या एक्सेल करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो व्हाट यू गेट? कैल्शियम कार्बोनेट. मतलब चौक का पाउडर मिल रहा है यहाँ पे आपको. मार्बल का भी यही कॉम्पोजिशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, सो व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन यू बबल एयर थ्रू दिस लाइम वाटर, व्हाट यू गेट कैल्शियम कार्बोनेट. और वाइट पूरा आपका सोल्यूशन मिल्की हो जाता है. लाइम वाटर आपका कलरलेस सोल्यूशन होता है, ट्रांसपेरेंट, पानी के जैसा. ओके, then next is magnesium hydroxide, also known as milk of magnesia. It is used in what? It is used in medicine as an antacid. And ammonium hydroxide, also known as liquid ammonia, it is
NH4OH and used in production of fertilizers. Okay, so this is all about bases. थोड़े और यूजेस देख लेते हैं. डोमेस्टिक यूजेस, पान, जो पान खाते हैं ना खाने के बाद फॉर बेटर डाइजेशन, दैट बीटल लीफ का पान, राइट. बीटल लीफ काफ़ी लोगों के घर में भी होगा, इसका क्लाइंबर होता है. तो ये बीटल लीफ में जो चूना लगाते हैं दैट इज योर बेस बाबा, एंड इट्स वेरी गुड. क्यों कर रहे हैं ये ऐसे? नहीं, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड. कैल्शियम ऑक्साइड डायरेक्टली नहीं लगाते, पानी में डालते हैं और उसका पेस्ट बनाते हैं और वो पेस्ट पान के अंदर स्प्रेड करते हैं. ओके, मैडम क्या एक्सप्लेन कर रहे हो, पान शॉप थोड़ी बंद निकालना है. अच्छा नहीं, पान शॉप नहीं करना, अच्छे से पढ़ाई करके, लेकिन ये पता होना चाहिए ना उसके बेसिस, जो खा रहे, जो कर रहे, जो एक्टिविटीज, उसके पीछे साइंस है, एंड वी मस्ट नो द साइंस बिहाइंड इट, राइट. सो बीटल लीफ के अंदर आप जो लगा रहे हैं ये बेस है, और ये क्यों लगा रहे हैं, एवे नहीं लगा रहे, इट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर योर बॉडी. ओके, तो अभी मैडम ने बोला है कि कैल्शियम, ये पान खाने से कैल्शियम बढ़ता है, तो अभी जाके पान ठेले पे पान नहीं खाना है. Okay, this you can do at home also, and it is not advised to do regularly, but once in a while, because it is a very rich source of calcium. Then antacid, आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये आपका यूज होता है एज एन एंटासिड. जेलुसिल हो गया आपका, डाइजीन हो गया, फिर वो क्या है, पैंडी होता है. काफ़ी सारे डेंटिस्ट भी अपने एंटीबायोटिक के साथ और पेन किलर्स के साथ एंटासिड देते हैं. ओके, बिकॉज उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स है आपके एंटीबॉडी के, वो बहुत बार बॉडी की एसिडिटी बढ़ाते हैं, एंड टू मिनिमाइज इट और टू कीप इट एट नॉर्मल लेवल इट इज़ एडवाइज टू टेक एंटासिड. और आपके एंटासिड में क्या है, आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है. वो क्या है, वो है हमारा बेस. ओके, देन इंडस्ट्री में क्या क्या यूज़ होता है. अच्छा, ये सारे जो मेटल्स हैं ना, जब ऑक्साइड्स तैयार करते हैं, ये काफ़ी सारे कलरफुल ऑक्साइड्स तैयार करते हैं. ओके, एंड हेंस पेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर इम्पार्ट करने के लिए ये सारे मेटल ऑक्साइड्स या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब हमारे बेसिस, हम लोग यूज़ करते हैं. ओके, सोप प्रिपरेशन में अभी हम लोगों ने देखा KOH NaOH यूज होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप. ओके, इन द पेपर इंडस्ट्री ऑल्सो इट इज़ यूज्ड. ओके, सो पेपर मेकिंग के लिए, सोप मेकिंग के लिए हमको क्या लगते हैं, बेसेस लगते हैं. देन डिफरेंट कलर टू ग्लास, जैसे पेंट को डिफरेंट कलर इम्पार्ट करेंगे, वैसे ग्लासेस को भी डिफरेंट डिफरेंट कलर इम्पार्ट करने के लिए हमारे यही मेटल ऑक्साइड्स आर ऑल्सो बेसिस. ओके, ये सारे सब्सटेंसेस यूज होते हैं, मतलब फॉर इम्पार्टिंग कलर टू पेंट्स एंड ग्लास, एंड इन द मेकिंग ऑफ सोप एंड पेपर. सोप कैसे पता, पेपर कैसे बनता है पता है सबको ना, ट्रीज़ के बार्क्स को चॉप करके. ओके, तो उनको डिज़ोल्व करने के लिए, मतलब उनको उनकी पेस्ट करने के लिए हम काफ़ी सारा एसिड डालते हैं. ओके, अगर हम वो एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करते तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पेजेस का येलोइंग होता है, क्योंकि हम लोग उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं. तो वो येलोइंग ना हो इसके लिए बेस से उसको काफ़ी बार वॉश करते हैं. वो जो पेस्ट बनता है बार्क का, उसको काफ़ी बार बेस से वॉश करके, मतलब एक्सेस एसिड निकल जाए, न्यूट्रलाइज होकर निकल जाए, इसके लिए वो बेस यूज होता है. ओके, सो दीज आर ऑल द यूजेस ऑफ बेसिस. आई गेस दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लियर टू यू, एकदम क्रिस्टल क्लियर है. ओके, thanks for watching Science at Click. I'll come up with the next topic, that is salt, how they are formed and what are the different uses of salt. Thank you so much. Keep watching Science at Click.